इधर नेहरू स्टेडियम है, सालों का स्टेडियम है मगर सहूलत नहीं हो रही, प्लेयर नहीं बन रहे। So good afternoon to all of you. Today, I'm very happy to have been part of the inauguration of this academy here in Bidar. It always gives me pride and pleasure to see that sports is being encouraged in many parts of India nowadays, and especially here in Bidar. Bidar has always been a place where sports has always attracted plenty of youngsters. And I know that Bidar has a very rich history when it comes to sports, football, cricket, and many other sports. And being a person who loves sports in general and someone who is especially very interested in football, I'm very glad today to be here to see these youngsters come up, to see the people, we can say, like, the former players have also taken this initiative to start a coaching academy here in Bidar. As we all know, nowadays India is shining in all fields. So having an academy to train youngsters at a very young age is very good for us, because our youngsters will get a technical training which will allow them to compete with international players, with people, with youngsters from many other countries. So my wishes to all the people who have taken this beautiful initiative to start this academy, I wish them all the best, and my wishes to the parents as well who are encouraging their kids to be active in sports, and my congratulations to all the youngsters as well who have decided to be part of this academy. Sir, will you reach out with the administration for supporting this academy? See, whatever is possible from my side. See, I have come here as an initial person because of the love of the sports, and because of I had summer work, so I've come here as an initial person. Whatever I can do from my side, I definitely will try to help the organizers. My message to the youngsters is that we have to be very, concerned about what we do from a very young age. First and foremost, I would like to tell youngsters to concentrate on their studies. Besides concentrating on their studies, they can also do so many things. The problem nowadays is that many of our youngsters, we think that we don't have time for sports because if we give some time for sports, then we will not be able to study. But that is a wrong concept. Most of the time which we waste as youngsters is wasted on other things, like being active in social media. We spend too much time on our mobiles. We do so many things and waste our time. But in fact, we should always keep sports as a priority along with our studies, because when we are fit physically, at that time our brain also becomes more sharper. So if we actually want to study well, we should also be more active in sports. We should be healthy, because to have a healthy brain, we need to have a healthy mind. So I would urge all youngsters, besides studying, you please take active interest in sports and in all other kind of physical activities. आप सीएस सर और डीसी मैडम से एक बार गुजारिश कीजिए कि बहुत सारी सहूलत यहाँ इधर नेहरू स्टेडियम है, सालों का स्टेडियम है मगर सहूलत नहीं हो रही, प्लेयर नहीं बन रहे, तो आपको कैसा लगता है? नहीं, मैं पहले से मैं बोलता है कि मैं तो यहाँ से विजिट है, तो शायद यहाँ स्टेडियम वो अभी क्या चलता है, तो आई डोंट हैव मच इंफॉर्मेशन एंड इट इज़ नॉट राइट फॉर मी टू स्पीक अबाउट दैट. लेकिन मेरे पास है, विद whatever is possible, I will try to help the sports people of Bidar. Yeah, thank you. नमस्ते सभी को. बीदर में क्रिकेट का रेवोल्यूशन आया, ऐसे मीडिया के थ्रू हम लोगों ने नहीं 2 दिन पहले की बात है, 50 टूर्नामेंट्स प्लस क्रॉस हुए थे क्रिकेट को. वो देख के मतलब बहुत खुशी हुई थी ऑलरेडी. जब फिर अखिल सर आए हमारे पास, तब मैं वही डिस्कशन पे थे कि हम लोग फुटबॉल का एक रेवोल्यूशन आना चाहिए, तो उसी के लिए हम लोग सपोर्ट में 100% रहेंगे. और आज मार्टिन सर भी आए हैं बेलगावी से, जो कि अच्छे खासे सपोर्ट में है इसके लिए. और हम अखिल सर को थैंक करते हैं, अजय सर को थैंक करते हैं, अहमद सर को, और अपने इमरान हुसैन सर को भी थैंक करते हैं. एक फुटबॉल का एक रेवोल्यूशन लाना है. इफ्तिकार सर को भी आगे आते दिनों में बीवीबी कैंपस होने दो, नेहरू स्टेडियम के कैंपस होने दो, यहाँ सब हम लोग एक बड़ा सा टूर्नामेंट प्लान करेंगे. इस बात का मुझे एक मैसेज पास करना था. धन्यवाद. थैंक यू. के बाद खेल जरा स्टैंडर्ड कम होते गया, बाद में नौजवान बच्चे दूसरे खेलों में दिलचस्पी लेते गए, लेकिन एक ज़माने से बीदर मशहूर हुए. ना सिर्फ बीदर, निज़ामाबाद में एक टूर्नामेंट होता था, बापू टूर्नामेंट, वो टूर्नामेंट की भी विनर रही है फरबादी के टूर्नामेंट में.
वहाँ की भी 1950s में बीदर रही है। जब हम 71 में टूर्नामेंट खेलने गए तो लोग याद करते थे बीदर के खिलाड़ियों के नाम देते। तो बीदर में बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। और यहाँ के खिलाड़ी में रहीम साहब जो ओलंपिक टीम के हमारे जो ओलंपियंस इंडियन प्लेयर थे, उनके कोच थे रहीम साहब हैदराबाद के। उन्होंने बीदर के टीम का मैच देखकर 1954 में ये कहा है, हमने दूसरों से सुना बड़ों से, कि बीदर के खिलाड़ी में बहुत ही स्टेमिना है, बहुत ही दमखम है, उनको सिर्फ कोचिंग की ज़रूरत है। आज अल्हम्दुलिल्लाह कोचिंग की सहूलत है। एक बाल के लिए हमको 8-8 दिन इंतज़ार करना पड़ता था। एक बाल हमारे प्राइवेट टीम में ख़त्म होने के बाद दूसरा बाल लाने के लिए पैसे लेते। आज हर चीज़ सहूलत है। तो मैं बच्चों से ख्वाहिश करता हूँ दूसरे रंग खेलों में छोड़ के बीदर का जो नाम फुटबॉल का पहले वो बरकरार रखें। उससे सिर्फ ना सिर्फ बीदर का नाम होगा बल्कि उनकी अपनी सेहत अच्छी होगी। ये गैर ज़रूरी दिलचस्पियाँ छोड़ दें। गैर ज़रूरी दिलचस्पियाँ जैसे अभी बता रहे थे हमारे शुजात अली खान साहब कि दूसरी चीज़ों में वक्त नहीं गुजारना। आज खेल रहे थे, बच्चे से पूछे फुटबॉल मैच देख रहा था, कब तक देखा? बोलते वो चार्जिंग रही तक देखा। यानी फुटबॉल मैच भी फ़ोन पे देख रहे, मैच भी फ़ोन पे खेल रहे। तो उनकी फिजिकल फिटनेस कहाँ से आएगा? किसी भी गेम के लिए फिटनेस जरूरी है, किसी भी आउटडोर गेम के लिए। तो मैं तमाम बच्चों से ख्वाहिश करता हूँ कि बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, एकेडमी कायम होने जा रही है, आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं और अपना वक्त खेल में रहें। उससे न सिर्फ आपका खेल अच्छा होगा, आपकी सेहत अच्छी होगी, आपके मुकाम का नाम होगा। हो सकता है कि कुछ बच्चे, मैं साहब से कहता चलूँ, मैंने अपने सीनियर को खेलते हुए देखा है। अगर उस वक्त बीदर की टीम बीदर कैपिटल के करीब होता बेंगलुरु की, तो हमारे प्लेयर न सिर्फ स्टेट लेवल बल्कि नेशनल लेवल सेलेक्ट होते थे। इतनी सलाहियत थी हमारे प्लेयर, लेकिन चूँकि सहूलत नहीं थी, कोचिंग नहीं थी एक अर्से तक। तो मैं बच्चों से कहता हूँ कि जो भी मौका मिला इससे फ़ायदा उठाएँ। और जो सीनियर जैसा आदिल हैं, मुजफ्फर साहब हैं, अंजुम हैं, सभी जितने लोग अभी भी खेल ग्राउंड छोड़ने के बावजूद बच्चों का साथ दे रहे हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि इसी तरह अपनी सरपरस्ती बाकी रखें। इतना कहते हुए मैं आप सबका शुक्रिया और IDIG साहब से और एक बार उनका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात करते हैं।